Hello students, welcome back to my channel Straight Like Jalebi. Today I will give a one shot revision on chapter Chemical Reaction and Equation. Yes, today's topic is Chapter 1 Chemical Reaction and Equation. इस चैप्टर में हम क्विक रिवीजन करेंगे सो दैट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैन बी कवर्ड और दोज विच आर वेरी हाईली प्रोबेबल द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट इज एक्टिविटी नंबर 1. सो 1.1 एक्टिविटी क्या कहती है? यहाँ से दो क्वेश्चन होगा. नंबर 1, एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 1.1 इन विच अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब हम मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएंगे तो बच्चों क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस. एंड टू बैलेंस, लेट बैलेंस इट. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होंगी कि व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आंसर नंबर 1 ये होनी चाहिए. नंबर 1, we will observe a dazzling white flame, number 1. And number 2, there will be formation of white powder. You can see the white powder which is collected in the watch glass. तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से प्रोबेबल है. अब एक क्वेश्चन ये और भी आता है कि what should we do before we burn the magnesium ribbon? We will definitely clean it with sandpaper. Because of corrosion, a layer of magnesium oxide और मैग्नीशियम कार्बोनेट इज डिपोजिटेड ओवर हेयर, जिसके चलते इसकी इग्निशन टेम्परेचर पहुंच नहीं पाती. ओके, सो वेरी सिंपल. इससे दो क्वेश्चन, एक है ऑब्जर्वेशन एंड व्हाई वी क्लीन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. यस, नाउ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग रिएक्शन. क्वेश्चन क्या आएगा? आपके पास कुछ रिएक्शंस दी रहेंगी और उसमें पूछेगा कि क्या यहाँ पर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं, whether the chemical change is taking place or not. So if a chemical change is taking place, definitely a chemical reaction is also taking place. तो हम कैसे पहचानेंगे? If in a given reaction there is a change in the state of matter, that is solid से liquid बन रहा है या liquid से gaseous state में बन रहा है या aqueous से solid plus gaseous state में बन रहा है, then we will say definitely a chemical change take place. As a result, there is a chemical reaction is happening. Second thing, change in color. Just now we have seen formation of yellow PPT. इस तरीके से जब भी रिएक्शन के दौरान चेंज इन कलर होगा तो डेफिनेटली वो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहलाएगा. इवोल्यूशन ऑफ गैस. डेफिनेटली वी नो कि whenever we do any reaction, if any gas is evolved, like hydrogen gas come out and we burn the gas, that gives a pop sound that confirm evolution of gas. Hence वहाँ पर भी chemical reaction होगा and change in temperature. Most of the cases में अगर आप combination reaction देखेंगे तो जो जिस टेस्ट ट्यूब में आप परफॉर्म करेंगे या बीकर में परफॉर्म करेंगे that will be heated up. तो change in temperature can be exothermic or endothermic. Hence हम कैसे कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. एंड इफ यू एड वन मोर फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ PPT, precipitation, is also considered as a chemical change. Clear? Now, type of chemical reactions. So on the basis of above observation, हम कह सकते हैं कि chemical reactions are of different types. The first type of chemical reaction is called combination reaction. Here, two or more reactant combine to form a single product. Okay, and then we call it a chemical reaction, which considered as a combination reaction. So combination reaction में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी और इसकी एक विशेषता है. वन सिग्निफिकेंट फीचर इज ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज्ड.
This energy can be in the form of heat, sometime in the form of light, and sometime in the form of ATP, adenosine triphosphate, as a form of energy. So these are the three things we will get whenever a combination reaction takes. Let's see one example. अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, now check the state of quick lime is solid and state of water is liquid. When they react, there is a formation of aqueous solution of calcium hydroxide, yes, red lime, and along with this, as I told you, energy will release. In this case, heat is released. Therefore, it is definitely a combination reaction. ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको डेफिनेशन देता है, तो आप कह सकते हैं. So combination reactions are basically exothermic reaction because energy is released in the form of heat, light and energy in the form of ATP. जैसे respiration. Respiration is an exothermic process because during respiration whatever we eat which contain carbohydrate, for example glucose C6H12O6 जो कि aqueous form में है, हमारे सेल के अंदर यही ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP के रूप में निकलता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ये तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली ये दो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. एक्टिविटी 1.5 में हम पहला देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास फेरस सल्फेट रहेगी. वी आर हैविंग फेरस सल्फेट विच इज लाइट ग्रीन और पेल ग्रीन इन कलर, एंड दिस व्हेन अंडरगोज हीटिंग then we will get ferrous oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. And you can see from a single solid, two or more products are produced. That means decomposition reaction happens when a single reactant, when we provide heat over here, a single reactant is converted into two or more reactant. So in this case, you have to supply energy. In this case, you have to supply energy. And that's why decomposition reactions are mostly endothermic reaction. Endothermic reactions होते हैं. ठीक है बच्चों, तो हमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं. बिकॉज यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई की जाती है सो दैट रिएक्शन कैन प्रोसीड, रिएक्शन हो पाए. जैसे एक्टिविटी 1 में आपके टेक्स्ट बुक में देखिए कि यहाँ पर फेरस सल्फेट के साथ अगर आप हीट करेंगे विच इज पेल ग्रीन इन कलर या लाइट ग्रीन इन कलर, और देखने को क्या मिलेगा, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें इसका रंग रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा. और ये कलर था क्या, पेल ग्रीन इन कलर, पेल ग्रीन था. तो यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन द कलर, हेंस इट इज अ केमिकल रिएक्शन. देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो केमिकल रिएक्शन. बट हियर फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट, single reactant, I'm sorry, two or more different products are produced. That's why it is called decomposition reaction. So under the heading of thermal decomposition reaction, there are three such type of reactions. Number one, as I told you, ferrous sulfate converted to ferrous oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Number two, lead nitrate. If we heat lead nitrate, then we get lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एक ब्राउन कलर के फ्यूम में निकलता है, ब्राउन फ्यूम के रूप में निकलता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शन. एम आई क्लियर? तो सिग्निफिकेंट रिएक्शन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन क्या है, पेल ग्रीन कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है. सेकेंड रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें एक ब्राउन कलर्ड फ्यूम निकलता है फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब
If you heat the test tube which contain lead nitrate, then obviously a brown colored fume is coming out, and that shows it definitely it is nothing but nitrogen dioxide. Okay. थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन लीजिए, हीट कीजिए, ऑब्वियसली क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और इसी का लाइम, क्विक लाइम को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज जब करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्विक लाइम और व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे लाइम क्विक लाइम कहते हैं, उसे हम सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकती है? नंबर 1, इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हमने हीट का इस्तेमाल किया है, ऑल दिस 3 रिएक्शंस, और इन तीनों रिएक्शंस में ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पेल ग्रीन कलर रेडिश ब्राउन में, और ड्यूरिंग दिस वी कैन सी that there is a formation of brown fume when you heat lead nitrate। and कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन को हीट करने पर क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसका इस्तेमाल हम सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। क्लियर? तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ second type of decomposition reaction is electrolysis of water। Electrolysis of water means breakdown of water molecules into hydrogen and oxygen in the presence of electricity। In the presence of electricity, we break down hydrogen and oxygen molecules, we call it electrolysis। यहाँ पर important questions क्या क्या होंगी? नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है on electrolysis of water, what is the ratio? Very important question। what is the ratio of hydrogen and oxygen? So hydrogen and oxygen की ratio always 2:1 रहेगी, 2:1। very important and prominent question। दूसरा क्वेश्चन यहाँ रहता है कि in which test tube you will get hydrogen and in which test tube you will get oxygen। मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में A and B दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि किस टेस्ट ट्यूब में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, किस टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ऑल्दो इट इज लेबल्ड हियर, एग्जाम में लेबल नहीं रहेगी और इस तरीके से A and B रहेगा। तो ऑब्वियसली A वाले में हम देख सकते हैं इट इज कनेक्टेड विद द एनोड, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और वहां पर हमें मिलता है ऑक्सीजन, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वहां हमें मिलेगा हाइड्रोजन। सो इन दिस वे वी कैन से दैट 2 prominent question from electrolysis of water, what energy we utilize in this case? Electricity। number 2, what is the ratio of hydrogen and oxygen? 2:1। and third, where will you obtain hydrogen and oxygen? So definitely oxygen at anode and हाइड्रोजन एट कैथोड, हाइड्रोजन एट कैथोड, हाइड्रोजन को हमें कैथोड में मिलेगा। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। फोर्थ टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं, एंड दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट देने पर हमें सिल्वर एंड क्लोरीन गैस मिलेगा। अगेन सॉलिड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड एज वेल एज गैसियस फॉर्म, सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ना इसे आप फोटोलाइटिक केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसे आप फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द white color silver chloride is converted into gray color, ओके, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके हम देखेंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड की कलर क्या होती है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है,
और हमें किस कलर का सिल्वर मिलता है, ग्रे कलर का, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो अगेन यू कैन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रही हैं और इसमें एनर्जी सप्लाई है लाइट या सनलाइट. ओके, सो दीज आर द very very important questions that is expected from decomposition reaction, and that's why decomposition reaction is known as endothermic reaction, because we supply energy in the form of what? Number one is heat, number two is electricity, and number third is light, and that's why we call it endothermic reaction. Okay students, yes, the next topic is displacement reaction. Now as we know that the strong reactive metal always displaces the weak metal, and that is called displacement reaction. That means if a metal A is there, when it is allowed to react with a salt of B, then it will produce a salt of A plus the element B. So you can see in case of this reaction, iron displaces copper from here, and as a result, this copper sulfate, which is blue in color, that's why copper sulfate is also known as blue vitriol, and when it is react with iron, they form iron sulfate, and this becomes pale green in color. Okay, pale green in color or light green in color, and a shiny brown copper will be reflected during the reaction. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगेन देयर इज अ चेंज इन कलर. ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन रहेगा वो पेल ग्रीन कलर के में कन्वर्ट हो जाएगा विद द अपीयरेंस ऑफ शाइनी ब्राउन कॉपर. That's why it is displacement reaction, because in this case iron displaces copper from copper sulfate solution. The next reaction is double displacement reaction. We have already discussed in our previous class that double displacement reaction is a bit different from displacement reaction. In single displacement, the more reactive displaces the less reactive metal. But in case of double displacement, there is an exchange of ion take place. I repeat, exchange of ion होता है. कैसे? ये देखिए, सोडियम यहाँ से बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, एंड बेरियम इज ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ सोडियम. अगर हम इसको एनालिसिस करें तो सोडियम इज हैविंग प्लस पावर एंड सल्फेट इज हैविंग -2 पावर, वेरएज बेरियम के पास +2 है और क्लोरीन के पास -1 है. अब यहाँ पर बेरियम जो है वो सोडियम की जगह ले रहा है और सोडियम जो है वो बेरियम के साथ एक्सचेंज कर रहा है. And since there is an exchange of ion and two places are being displaced, that's why it is called double displacement reaction. Okay? Yes, now activity 1.2. In this activity, we will find that when lead nitrate is allowed to react with potassium iodide, they form lead iodide and potassium nitrate. Now, this is a wonderful example of double displacement reaction as well as precipitation reaction, because here lead iodide is yellow color PPT, and that's why this activity with this reaction is very very important. So please prepare very nicely. So now let's discuss about the oxidation and reduction reaction, in which what is oxidation? Quick review, जो कि आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होती है. डेफिनेटली ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है. दैट मीन्स इन एनी कंपाउंड इफ ऑक्सीजन इज एडेड देन वी कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, या रिमूवल
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एटम। अगर हम किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को या हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे, देन ऑल्सो वी कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये दो टॉपिक के आधार पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है नहीं। एंड वन मोर थिंग इज दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑल्दो ये टॉपिक आपके सिलेबस में अभी नहीं, ठीक है। सो ये 3 टॉपिक आपसे पूछी जा सकती है कि हाउ कैन यू से कि फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। Now what is reduction? Now when you say reduction, so we will definitely say just opposite to the above one. There will be addition of hydrogen, okay. There will be removal of oxygen and there is an gain of electron. ये 3 कहानियां अगर होती हैं तो भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और रिडक्शन रिएक्शन होगा। So these are very easy, straight like jalebis and you just enjoy the flavor and taste of this jalebi, है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा इजी ढंग से लेंगे भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों हो रही है। ध्यान से देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, कब, व्हेन वी हीट इट, तो हमें कॉपर और वाटर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और यहाँ से अगर हम यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या, ये रिमूवल ऑक्सीजन किस में हो रही है, डेफिनेटली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें यहाँ दिखाई दे रही है, रिडक्शन में दिखाई दे रही है। तो भैया कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक रिडक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है सर, देख सकते हैं रिडक्शन हो रही है। एंड हाइड्रोजन के अंदर हम देख सकते हैं कि देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके। नाउ अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो सकता, कदापि नहीं, नेवर। इसीलिए दिस हाइड्रोजन is treated as, in this case hydrogen is, in this reaction hydrogen is a reducing agent, क्योंकि हाइड्रोजन के चलते ही ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, याद रहेगा। और इस रिएक्शन में अगर कॉपर ऑक्साइड ही नहीं रहता तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलता कहाँ से, दैट्स व्हाई copper oxide in this reaction is an oxidizing agent। तो भैया एजेंट और रिएक्शन में क्या फर्क है, अगर फिनोमेनन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो उस हिसाब से उसे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर उस रिएक्शन में जो रिड्यूस करवा रहा है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिएक्शन दी रहेंगी, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ से कहाँ तक रिडक्शन हुआ, और कौन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है एंड वे VVIMP है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्यों, इसका रीज़न ये ऐसा है कि इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में एक बहुत ही फैंटास्टिक फिनोमेनन होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड जो है उसे जब 4HCl के साथ ट्रीट किया जाएगा वो मैंगनीज क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो बचा क्या रहा, मैंगनीज क्लोराइड बना, क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जब हमारा ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेफिनेटली उसे हम रिडक्शन कहेंगे। और HCl के साथ
अगर हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसीलिए 95% बच्चे इस रिएक्शन को यहाँ तक समाप्त करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यही इसका टर्निंग पॉइंट है। आई रिपीट, HCl से अगर आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो बच्चों बचा क्या? ओनली क्लोरीन। इसीलिए ये स्टार्ट तो यहाँ से होगा मगर खत्म H2O में नहीं होकर यहाँ तक जाएगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपने कहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो भैया HCl स्ट्रेट जलेबी से आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो आपके पास क्लोरीन गैस बचेगी, और इसीलिए HCl से Cl2 तक, फ्रॉम HCl to Cl2, this is called oxidation reaction and it is very vital reaction from examination point of view, क्योंकि 95% बच्चे HCl से H2O तक बनाते हैं विद दिस थॉट कि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्लोरीन तक ही लेके जाना है। याद रखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन HCl से Cl2 तक हुआ। हेंस यहाँ पर इस मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाला किसने? HCl ने। इसीलिए हमारा HCl विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, एम आई करेक्ट? और ये मैंगनीज ऑक्साइड जो है दिस विल बी डेफिनेटली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज वेरी मच क्लियर, आई होप। Now, the final topic from this chapter is corrosion. Corrosion होती क्या है? It is simply a chemical reaction in which the metal is being react in the air, in the presence of air or oxygen and acids, and they show some change in color, and then there is a different chemical formation take place on their surface, जिसे हम normally corrosion कहते हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि कोरोजन होती क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एसिड और वाटर के प्रेजेंस में हम देखते हैं कि मेटल अपने ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन बनाती है, जिसके चलते ये मेटल कोरोजन के अंतर्गत आते हैं। और ड्यूरिंग दिस कोरोजन व्हाट आर द थिंग्स हैपन? डेफिनेटली चेंज इन कलर, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग है इस टॉपिक से। नंबर 1, अगर आपके पास आयरन है, देखिए आयरन का एक नट बोल्ट है, तो ये आयरन विल अंडरगो कोरोजन, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग। सो रस्टिंग इज ओनली यूज्ड फॉर आयरन। आयरन के लिए ही हम रस्टिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप क्लियर। जिसमें आयरन क्या करती है, एक अपने ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो बताइए सर। एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन आर्टिकल्स के रंग में क्या चेंज आती है। MCQ, रेडिश ब्राउन, ओनली ब्राउन, ग्रीनिश ब्राउन और ग्रे एक्सेट्रा, इस तरीके से ऑप्शन रहेगी। तो आपको रेडिश ब्राउन चूज करना है फ्रॉम कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? इसके फैक्टर्स डेफिनेटली ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर होते हैं। क्लियर? आई रिपीट, ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर, these are the 3 basic factors which influence the rusting of iron, जो कि कोरोजन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट इज सिल्वर की, जो देखिए ये सिल्वर की स्पून्स हैं, और ये सिल्वर की स्पून धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्न्स ब्लैक। तो सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और ये सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर की होती है। हेंस वी कैन से दैट कोरोजन इज टेकिंग प्लेस ऑन द सिल्वर आर्टिकल्स। लास्ट एंड फाइनल, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, एंड दिस कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन इन कलर। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का ब्रिस्टल्स आ रहा है और ग्रीन कलर की पैचेस डेवलप हो रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोजन इज टेकिंग प्लेस इन कॉपर ऑल्सो। सो कोरोजन से, इस चैप्टर से कोरोजन में 3 टॉपिक आती है, स्पेशली ऑन द कलर। आयरन से आती है रेडिश ब्राउन, सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है, और कॉपर का कलर ग्रीन कोटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। So this is a very quick review of this chapter. Thank you very much.
I hope you like my video. Comment, share and subscribe my channel. Thank you.